Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. You're watching Constitution Law series by Law by Nilakumar, and today we shall be discussing Article 13 of the Constitution of India. Let us first read the bare text. All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of the Constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void. Clause 2. The state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void. Clause 3. In this article, unless the context otherwise requires, law includes ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom, or usage having in the territory of India the force of law. Subclause B. Laws in force include laws passed or made by a legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed. Notwithstanding that, any such law or any part thereof may not be then in operation, may not be in operation either at all or in particular areas. Clause 4. Nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under Article 368. Now, after reading the bare text, I've underlined a few keywords, right? We will now be exploring each clause of this article one by one. Please note that we will not be exploring clause 4 right now. We will be exploring this when we read about Article 368, which contains the power of the Parliament to amend the Constitution. Okay. Now let us move on to Article 13, Clause 1. Now, Article 13, Clause 1 talks about the laws which were present before the Constitution came into force. It says that if they are inconsistent with any of the provisions of this part, it will be void to the extent of such inconsistency. अब ये पढ़ने के बाद हमें तीन चीज़ें समझ में आती हैं. पहली चीज़, this article has validated all the pre-constitutional laws made by the then competent legislature. Validated all the pre-constitutional laws. अब इससे कहने का क्या मतलब है? By the then made by the then competent legislature, right? The then legislatures का क्या मतलब है? बेसिकली जो हमारा जब ब्रिटिश रूल चल रहा था इंडिया में, तो उस समय जो भी लेजिस्लेचर था, उसके पास जो भी उस समय कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर था, नॉट एनी रैंडम पर्सन और एनी रैंडम अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर उस समय के लॉज के हिसाब से जो था, ठीक है, उन्होंने जो भी लॉज बनाए, दे हैव बीन वैलिडेटेड बाय आर्टिकल 13 क्लॉज 1, राइट? Had the constitutional makers invalidated or declared all previous laws void, it would have created chaos and lawlessness across the country. It would have been a Herculean task to, invalidate all the pre-constitutional laws and then replace them with a newer version or the version without colonial elements in it, right? So that would have been very difficult. So what did they do? Instead of actually invalidating them, they said that let the pre-constitution laws be valid even after the commencement of the constitution, right? They have said that. Now coming on to second thing, so validation हो गया. Second thing, अब वैलिडेशन के बाद प्रॉब्लम ये है कि आपने बहुत बार अपने ब्रिटिश हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो ब्रिटिश एरा के रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते, जो लॉज बनते थे, दे वर यूजुअली नॉट फेयर, राइट? दे वर, एंड स्पेसिफिकली प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात की जाए तो वो तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता था, राइट? दे इनफैक्ट देयर वर सर्टेन लॉज जहाँ पे विदाउट ट्रायल आप अक्यूज पर्सन को ये कर देते थे, क्या, एग्जीक्यूट कर देते थे, राइट? तो ट्रायल का भी राइट नहीं था. सर्टेन लॉज ऐसे भी बने हैं ब्रिटिश एरा में. तो अब वैसे पार्ट्स को हम एक तरफ बोल लें कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज को वैलिडेट कर रहे हैं इवन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या हम ऐसे लॉज को भी करेंगे वैलिडेट जो आपका स्ट्रेट अवे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है? द आंसर इज नो. दैट इज वाई इफ यू रीड द बेयर टेक्स्ट, लेट्स कम बैक टू द बेयर टेक्स्ट. If you read the bare text, you'll find that
all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of the Constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this part. They have mentioned this part. This part matlab part 3 of the Constitution. They shall be to the extent of such inconsistency be void. So the second thing that we're talking about is that if they are in violation, if these laws are in violation of part 3 of the Constitution, then I'm so sorry, this is part 3, part 3 of the Constitution, then they shall be void to such extent. टू सच एक्सटेंट का मतलब ये है सिर्फ उतना ही पार्ट वॉइड होगा जितना वायलेटिव है, नॉट द एंटायर लॉ. फॉर एग्जाम्पल मान लो आईपीसी में इतने सारे प्रोविजंस हैं, मान लो कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन है वो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, तो ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन या फिर उस पर्टिकुलर सेक्शन के भी पर्टिकुलर पोर्शन को वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, ना कि पूरे के पूरे इंडियन पीनल कोड को. ठीक है, इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन भी कहते हैं. ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन या डॉक्ट्रिन ऑफ, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इफ यू सी माय स्लाइड, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बोलते हैं इसको. राइट, कमिंग बैक टू 13 क्लॉज 1 नाउ. तो 2 पॉइंटर्स हमने समझ ले. अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट मेरा एक्चुअली यही था, दैट दे शैल बी वॉइड टू सच एक्सटेंट. दिस वॉज द थर्ड पॉइंट. सो प्लीज मेक श्योर दैट वेर एवर यू आर मेकिंग नोट्स you write all these 3 points. Okay, now let us move on to the next article, that is article 13 clause 2. Acha, one more important thing, 13 clause 1 was only talking about pre-constitutional laws. I mean the laws that were made by the then competent legislature before the commencement of the constitution. Okay, this is also very important, because when we come to article 13 clause 2, the very first thing that I'm going to say is it is talking about post constitutional laws. Okay, 13 clause 2 सिर्फ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बात करता है. अब 13 clause 2 बेसिकली क्या बोलता है? ये बोलता है कि 13 clause 2 टॉक्स अबाउट लॉज विच वर पास्ड बाय आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स. ठीक है, देन उसके बाद हम पढ़ते हैं, इट रेंडर्स ऑल द लॉज वॉइड विच वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट. दिस पार्ट का मतलब पार्ट 3. दिस एक्ट एज अ लिमिटेशन अपॉन द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द लेजिस्लेचर. कहने का मतलब ये है कि स्टेट जो है हमारा, जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर को पावर ही नहीं दी गई है कि आप कोई ऐसा लॉ बनाओ विच इज़ गोइंग टू बी वायलेटिव ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, पहले क्या 13 clause 1 में क्या था? 13 clause 1 में था लॉज ऑलरेडी बने हुए थे, तो अब जो चीज़ बन चुकी है उसका तो अब कुछ कर नहीं सकते. इसलिए 13 clause 1 में बोल दिया गया कि जो पार्ट, उसमें जो पर्टिकुलर पोर्शंस होंगे लॉज के जो वायलेटिव होंगे, उनको टू सच एक्सटेंट वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा. 13 clause 2 में बोला जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद लेजिस्लेचर ऐसा लॉ बना ही नहीं सकती है, तो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है कि कोई ऐसा लॉ बनेगा जो कि वायलेटिव हो फंडामेंटल राइट्स के. ठीक है, अब ये बात तो इन्होंने बोल दी. अब तीसरी चीज़ ये, तो दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या था? दूसरा पॉइंट आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट, सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, कैन नॉट मेक लॉज विच आर violative of पार्ट 3. ठीक है, तो लेजिस्लेचर को ये पावर ही नहीं दी गई है. अगर लेजिस्लेचर ऐसा करता है देन इट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू डू दैट. ठीक है, वो इलीगल चीज़ होगी. तीसरा पॉइंट मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो ये है, अब क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि हमने बोल तो दिया कि लेजिस्लेचर ऐसा नहीं कर सकती, बट अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत सारे ऐसे लॉज दिखेंगे जो कि लेजिस्लेचर बना देता है, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है या हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है. देयर आर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इन इंडिया. वन इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली एंड द अदर आर द हाई कोर्ट्स. Both of these courts have the power to interpret the constitution and they have the power of writ jurisdiction as well. Right? तो तीसरा पॉइंट ये है कि ये कैसे चेक किया जाए कि ये जो हमने लेजिस्लेचर ने को जो पावर दी है कि आप सिर्फ ऐसे लॉज बनाओ जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करें,
बट अगर वो ऐसे लॉज बना भी देते हैं जो वायलेट करते हैं तो फिर उसका क्या? तो जैसा कि मैंने आपको बोला, सुप्रीम कोर्ट में वैसे लॉज को चैलेंज किया जाता है। ये चैलेंज करने का जो प्रोसीजर होता है, ये पावर कहाँ से आ रही है सुप्रीम कोर्ट के पास? ये आर्टिकल 13 क्लॉज 2 से आ रही है, और इस पावर को बोलते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इस पावर को हम बोलते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का बेसिकली मतलब क्या होता है? दैट द जुडिशरी कैन review the laws made by the legislature. Now, judicial review does not mean that the Supreme Court can ask the legislature to make particular laws, but they can only say that whatever law you have made, this is inconsistent with Part 3, and therefore we are declaring it as void, or we are declaring this particular part to be void. Clear? Now let us move on to 13 clause 3 सब clause A. यहाँ पे मीनिंग ऑफ लॉ की बात की गई है, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, आई टेक यू बैक टू द बेयर टेक्स्ट। इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स लॉ इंक्लूड्स दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन दिस आर्टिकल, यहाँ पे जो लॉ का डेफिनेशन और लॉज इन फोर्स का डेफिनेशन दिया गया है, दैट इज़ ओनली लिमिटेड टू आर्टिकल 13 एंड नॉट द एंटायर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा आपने आर्टिकल 12 में पढ़ा था कि स्टेट का डेफिनेशन जो है वो पूरे पार्ट 3 पे अप्लाई होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे लॉ का जो और लॉज इन फोर्स का जो डेफिनेशन है वो सिर्फ आर्टिकल 13 पे अप्लाई होता है। तो इस चीज़ को अपने नोट्स में आप लिखना, इट ओनली अप्लाइज टू आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेम चीज़ मैं क्लॉज बी के लिए भी आपको बोलूँगा, अप्लाइज टू आर्टिकल 13 ओनली। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट लॉ एक्चुअली मीन्स। फर्स्ट इज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का बेसिकली क्या मतलब होता है? ऑर्डिनेंस इज पास्ड बाय आइदर द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ठीक है। ऑर्डिनेंस बेसिकली ऐसे लॉज हैं बेसिकली जिसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट या फिर जो लेजिस्लेचर होता है स्टेट का, वो उस समय सेशन में नहीं होता, राइट। देयर आर डिफरेंट सेशंस, तो वो सेशन में नहीं होता है, बट देयर इज पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर देयर इज सच एन अर्जेंसी ऑफ पासिंग अ लॉ, ऑफ मेकिंग अ लॉ ऑपरेटिव, राइट। तो एग्जीक्यूटिव लॉ बनाता है तो उसको पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में प्रेजेंट किया जाता है, ये नॉर्मली होता है। लेकिन अभी सेशन में नहीं है बट अर्जेंसी है अभी उसको अप्लाई करने की, तो वैसे में क्या करता है एग्जीक्यूटिव गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट एज द केस में भी उनके पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि सर मैम ये लॉ है और इसको अभी पास करने की ज़रूरत है, तो आप अपनी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है उसका इस्तेमाल करें। ये एक एक्स्ट्रा पावर है जो ये बेसिकली एक लेजिस्लेटिव पावर है जो गवर्नर और प्रेसिडेंट को दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। एंड उस लॉ को एज ऑर्डिनेंस पास करें। ऑर्डिनेंस का एक लिमिटेशन होता है, अब ये सब हम बाद में पढ़ेंगे जब हम बाद में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्डिनेंस का बस यही है कि बाद में वो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में प्रेजेंट किया जाता है कि वेदर वी वांट टू कंटिन्यू दिस एंड कन्वर्ट इट इनटू अ लॉ और नॉट, लॉ एज इन अ लेजिस्लेशन और नॉट, राइट। तो ऑर्डिनेंस का बेसिकली वो मतलब होता है, ये प्लीज़ रिमेंबर गवर्नर भी बना सकता है और एंड प्रेसिडेंट भी बना सकते हैं। देन यू हैव ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब हो गया बेसिकली मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, कोर्ट्स के ऑर्डर्स, ये सारे के सारे ऑर्डर्स इसमें इंक्लूड होता है। बाईलॉज यूजुअली होता है ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पढ़ा होगा। लेजिस्लेचर जब कोई लॉ बनाता है तो उसमें आपने देखा होगा देयर आर सर्टेन क्लॉजेस, देयर आर सर्टेन प्रोविजंस जिसमें दिया जाता है दैट द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक रूल्स, रेगुलेशंस और बाईलॉज इन रिगार्ड टू दिस एक्ट, या फिर वो पर्टिकुलर एक लिस्ट दे देते हैं कि इन बिहाफ में ये लॉज, ये रूल्स, रेगुलेशन या बाईलॉज बना सकते हैं। तो यहाँ पे वो बाईलॉज वही है जो एग्जीक्यूटिव के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव लॉ नहीं बना सकता है, लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, बट एग्जीक्यूटिव को लिमिटेड पावर दी जाती है बाय वे ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन टू मेक लॉज। उन लॉज को हम बाईलॉज बोलते हैं, ठीक है। अगर वो रूल्स के फॉर्म में बनते हैं तो उनको हम रूल्स बोलते हैं। जैसे आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं,
वो रूल्स कैसे बने? क्योंकि लेजिस्लेचर ने ईपीए एक्ट हम इसको बोलते हैं, ईपीए में इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि आप ऐसे रूल्स रेगुलेशन या बाई लॉज बना सकते हैं. सेम थिंग गोज टू रेगुलेशंस. देन नोटिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आप देखोगे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन इशू किया गया है दैट दे आर स्टार्टिंग विद द प्रोसेस ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द गिविंग citizenship card, right? They provided some citizenship card also. तो ये जो नोटिफिकेशन इशू किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसको भी आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो बिकॉज ये लॉ के डेफिनेशन में आता है. ठीक है. एंड लास्ट इज कस्टम्स एंड यूजेज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, विच आर द फोर्स ऑफ लॉ, राइट. तो कस्टम्स एंड यूजेज बेसिकली हो गया जो लंबे समय से विदाउट एनी ब्रेक चला आ रहा है एंड इट इज़ वैलिड इन द आइज ऑफ द लॉ, इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ. जैसे स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंड स्केड्यूल्ड कास्ट के बहुत सारे ऐसे रिलीजियस मैटर्स हैं या बहुत सारे उनके ऐसे मैटर्स हैं जो एज कस्टम्स और यूजेज कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया गया है. तो वो कस्टम्स और यूजेज भी लॉ का पार्ट होगा. अब ये लॉ का डेफिनेशन पढ़ना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर लॉ का डेफिनेशन नहीं पता चलेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या चैलेंज करोगे? वो हाउ विल यू नो? जुडिशियल रिव्यू का पावर कैसे एक्सरसाइज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में? तो इन सारे चीज़ों को आप, क्योंकि ये लॉ के डेफिनेशन में आ रहे हैं और आर्टिकल 13 में अप्लाई होता है, तो 13 क्लॉज 2 में जो जुडिशियल रिव्यू का पावर एमनेट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, वो ये सारे के सारे चीज़ों को आप चैलेंज कर सकते हो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में, राइट. Now let's understand what is laws in force. Laws in force includes those laws which were on statute book but were not in use or operational. ठीक है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेसिकली. लॉज इन फोर्स का बेसिकली यही मतलब हो जाता है कि आपने कोई ऐसा लॉ बनाया जो स्टैच्यूट बुक पे है, ठीक है, बट उसको नोटिफाई नहीं किया गया है, ठीक है, या फिर ऐसे लॉज जिनको स्टैच्यूट बुक पे है और उनको नोटिफाई भी कर दिया गया है. तो लॉज इन फोर्स दोनों इन चीज़ों को इंक्लूड करता है, विच आर ऑपरेशनल एंड विच आर नॉट ऑपरेशनल. स्टैच्यूट बुक का मतलब होता है बेसिकली एक पूरा का पूरा कलेक्शन होता है जहाँ पे सारे इंडिया के प्री ब्रिटिश एरा, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एरा, सारे के सारे लॉज का एक कंपेंडियम होता है. बेसिकली एक लिस्ट होती है जहाँ पे सारे लॉज होते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी काइंड ऑफ थिंग है वो. स्टैच्यूट बुक का कहने का मतलब यही है, ठीक है. तो ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल लॉज मतलब जो नोटिफाई हो चुके हैं और जो नोटिफाई नहीं हुए हैं बट स्टैच्यूट बुक पे अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे लॉज इन फोर्स में इंक्लूड होंगे. एंड लॉज इन फोर्स, यहाँ पे लॉज का मतलब हम ऑलरेडी पिछले स्लाइड में देख चुके हैं. तो वैसे लॉज को भी आप चैलेंज कर सकते हो जो ऑपरेशनल नहीं है अभी, ठीक है. यहाँ पे कहने का बस यही मतलब है. लेट अस नाउ मूव ऑन टू द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 13, राइट. Now there are three things that you need to understand. Article 13 does not have any retrospective effect. Then Article 13 में हम doctrine of severability apply करते हैं and तीसरा doctrine of eclipse apply करते हैं. Let us understand what does this actually mean. Post now retrospective effect की बात करते हैं. Post the commencement of the Constitution, every pre-constitutional law must conform to the provisions of Part 3. This is what Article 13 Clause 1 tells. In case that does not happen, it cannot operate after 26 January 1950. This is the date when the Constitution came into force. Right? Constitution came into force. All inconsistent pre-constitutional laws would become void only after the commencement of the Constitution. They are not void ab initio. Now, this is very important to understand. Let's understand this with the help of the case law. Keshav Madhav Menon versus State of Bombay. Now, in this case, what had happened? This case is of September 1949. ठीक है. The Keshav Madhav Menon is actually a secretary of a publishing house, and he published a pamphlet in Bombay, and that pamphlet was found to be violative of a pre-constitutional law, Indian Press Emergency Powers Act. I'll write it here for you. Indian Press Emergency Powers Act of, this is the year 1931. Right, it was found to be violative of this law.
Now this happened in September 1949. Now while its prosecution was pending and the process, the the wheel of the criminal justice system was rotating, right, revolving, then in what happened, the constitution came into force. अब कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स में आया तो आर्टिकल 19 भी फोर्स में आया. अब आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी में देखोगे वहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, राइट. तो केशव माधव मेनन ने कोर्ट में चैलेंज किया, स्टेट ऑफ बॉम्बे मतलब बॉम्बे कोर्ट हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो रिजेक्ट हो गया. सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया दैट इट शुड हैव द व्हाट डू यू से Article 13 Clause 1 should have retrospective effect because my case happened before the constitution came into force, but my trial is going to happen after the constitution has come into force. So अगर देखा जाए तो basically my fundamental right is being violated. The Supreme Court said that Article 13 Clause 1 by reason of its language cannot be read as having obliterated the entire operation of the inconsistent law or having wiped it out altogether from the statute book. It cannot accept this, right? उसका लैंग्वेज ऐसा है ही नहीं कि ये void ab initio हो रहा है, ये void declare हो रहा है. There's a difference between holding a law void and holding a law void ab initio. Void मतलब from the date it has been declared, that is prospective effect. And void ab initio का मतलब है that right from the beginning, the day that law was passed, all the actions would be invalidated, taken under that law, right? So Supreme Court said that Article 13 Clause 1 has prospective effect and not retrospective effect. ठीक है, retrospective का उल्टा होता है prospective effect. That is, it will have effect from the date the decision has been taken by the court. Let us now move on to next, that is doctrine of severability. Now, doctrine of severability means that if the repugnant or the offending provision, that is the inconsistent part of the law, can be separated from what is constitutional, then only that part which is repugnant or inconsistent will be declared to be void and not the entire statute. This is what I was telling you about na पीछे when we were reading Article 13 Clause 2, right? So डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बेसिकली यही कहता है कि अगर एक लॉ है, मान लो लॉ में 3 पार्ट्स है, उसका बी पार्ट जो है इट वाज फाउंड टू बी वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो इसको इन्होंने रिमूव कर दिया. अब लॉ में कौन से पार्ट्स बचे? पार्ट ए बचा, पार्ट सी बचा. तो पार्ट ए और पार्ट सी जो स्टैट्यूट का है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर रहा है और वो इनकन्सिस्टेंट नहीं है, तो दे कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड. ओनली पार्ट बी ऑफ दैट लॉ विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड. लेकिन अब ये सेकेंड पॉइंट पढ़ो. If by removing the inconsistent part of the statute the law becomes such that it cannot stand alone, then the entire law would be declared void. कहने का मतलब ये है जब हमने बी पोर्शन हटा दिया. अब देखो कोई भी लॉ बनता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है. उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम बोलते हैं प्रियम्बल ऑफ द लॉ. जो हर लॉ के स्टार्टिंग में ऊपर में इटैलिक्स में लिखा होता है उसको हम प्रियम्बल बोलते हैं, राइट? अब preamble is basically deciding the objective of the law. What is the objective of the law? Why this law has been passed by the legislature? Why this law has been made? तो अगर हमने बी पार्ट हटा दिया मान लो, और बी पार्ट हटाने के बाद इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही डिफीट हो जाता है. ए एंड सी कैन नॉट, जो भी बचा हुआ पार्ट्स है ए सी डी, जो भी बचे हुए पार्ट्स है स्टैट्यूट के, नाउ दे कैन नॉट ऑपरेट इन द एब्सेंस ऑफ पार्ट बी ऑफ द statute, then the entire law will have to be declared void, right? तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग के 4 पिलर्स हैं, ठीक है, आप कह रहे हो कि एक पिलर जो है वो सही नहीं है तो हमें एक पिलर तोड़ना पड़ेगा, बट क्या वो 3 पिलर पे बिल्डिंग खड़ी रह पाएगी कि नहीं खड़ी रह पाएगी? दैट इज़ द क्वेश्चन हियर. अगर खड़ी रह पाएगी तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई करके उस बिल्डिंग को एज इट इज़ छोड़ दिया जाएगा. द बिल्डिंग हियर इज़ द लॉ. लेकिन नहीं खड़ी रह पाएगी, अगर वो गिर जाएगी तो पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही तोड़ना पड़ेगा. नॉट ओनली द पिलर्स बट पूरी की पूरी बिल्डिंग को. दैट इज द एंटायर स्टैट्यूट विल हैव टू बी डिक्लेयर्ड वाइड. आई होप आपको ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया हो. Now another important thing, that this doctrine applies to both pre-constitutional and post-constitutional laws.
The doctrine has its origin in England, and it was formulated in the case of Nordenfeldt versus Maxim Nordenfeldt Guns and Ammunition Company Limited, 1894. It was later on adopted in the Indian judiciary. ठीक है, इंडिया में भी काफ़ी लॉ केसेस में इसको अप्लाई किया गया, जैसे RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बालसारा. ठीक है, अभी हम एक दो केसेस भी देखते हैं, जैसे RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अगर आप देखो, in this case, Section 2D of the Prize Competition Act was broad enough to include competitions of a gambling nature as well as competitions involving skill. Now, the Supreme Court held that the provisions of the Act were severable, and it struck down those provisions which were related to competition involving skill. तो इसमें दो तरीके के competitions के regarding provisions थे. एक था competition involving skill and एक था involving gambling. तो जो स्किल वाला पोर्शन था, इट वॉज फाउंड टू बी वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड देयरफॉर इट वॉज हेल्ड टू बी वॉइड. फिर देखा गया कि क्या डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई हो पाता है कि नहीं हो पाता है. तो इट वॉज फाउंड दैट द स्टैट्यूट कैन सर्वाइव विदाउट द इनकंसिस्टेंट पार्ट. AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट है ये भी. इन दिस केस इट वॉज फाउंड दैट सेक्शन 14 ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट वॉज वायलेटिंग आर्टिकल 14 and thus it was made void. But other parts of the act were separable, and therefore doctrine of severability was applied and the law was still alive and operative. Only the inconsistent part was removed, that is section 14. Now let us move on to the last concept in this video, that is doctrine of eclipse. Now this doctrine is for validation of void laws. It is based on the principle that a law which violates fundamental rights is not void ab initio, but only becomes unenforceable. That is, it does not become dead, rather remains only dormant. Such a law can be revived by the legislature by removing or rectifying the inconsistency in the law. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी कोई लॉ का पोर्शन इनवैलिडेट किया जाता है, वॉइड डिक्लेयर किया जाता है, तो उसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स भी अप्लाई होता है. ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स बेसिकली क्या कहता है कि वो जो पोर्शन है दैट इज नॉट डेड, दैट इज ओनली डॉर्मेंट. अगर लेजिस्लेचर उस डिफेक्ट को, जो इनकंसिस्टेंसी है, उसको अगर रेक्टिफाई कर सकती है या रिमूव करके उसको नए फॉर्म में ला सकती है लॉ को, तो द लॉ विल बिकम ऑपरेशनल. तो जैसे मून एंड सन, हमारा जो एक्लिप्स होता है, थोड़ी देर के लिए अंधेरा हो जाता है, फिर जैसे मूवमेंट होती है अर्थ एंड मून की, एंड वैसे लाइट आने लगती है. तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है. इसका बेस्ट एग्जांपल ये वाला केस है. दिस इज लैंडमार्क केस, सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस एंड राइट इट डाउन. बीकाजी नारायण धकरास वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1955 सुप्रीम कोर्ट केस. In this case, the provisions of CP and Berar Motor Vehicles Act of 1947 authorized the state government to take up the entire motor transport business in the province to the exclusion of motor transport operators. Now, this is a pre-constitutional law, and you can see that it is straight away a violative of Article 19(1)(g), that is right to freedom of profession. ठीक है, therefore, after the constitution came into force, it was declared to be void. This particular portion of the act was declared to be void, right? However, what did the legislature do? They rectified this defect. In 1951, by the Constitution First Amendment Act, Article 19 Clause 6 was amended in a way to authorize the government to monopolize any business. राइट, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में अगर आप देखोगे, जैसा मैंने आपको हमारा फर्स्ट वीडियो तो था फंडामेंटल राइट्स में, मैंने उसमें सबसे पहली बात यही कही थी, यूएस में जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो एब्सोल्यूट इन नेचर होते हैं, वेयरएज इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनमें रेस्ट्रिक्शंस के साथ होते हैं. तो वैसे ही हमारा 19(1)(g) जो है उसके रेस्ट्रिक्शंस हैं कुछ जो आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में दे रखे हैं. And it was amended to authorize the government to monopolize any business. It was held that the effect of the amendment was to remove the shadow, that is, you are rectifying the defect, and make the impugned act free from all blemish or infirmity. Resultantly, the act became enforceable. Right? Now, the last question that comes is, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पे अप्लाई करता है या सिर्फ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पे अप्लाई करता है या दोनों पे अप्लाई करता है. तो दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1959 का सुप्रीम कोर्ट का केस है. इसमें बोला था सुप्रीम कोर्ट ने दैट इट ओनली अप्लाइज टू प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, लेकिन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्री अंबिका मिल्स में इसको बोला गया दैट द कोर्ट हेल्ड दैट a post-constitutional law which is inconsistent with the fundamental right is not nullity or non-existent in all cases and for all purposes. Right?
अब फिर तो बेसिकली ये बोल दिया गया कि ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पे भी अप्लाई करेगा. सो इट अप्लाइज टू बोथ, अप्लाइज टू प्री एज वेल एज प्री कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. ठीक है, ये जितने भी केस लॉज है सारे लैंडमार्क जजमेंट्स है, फालतू के केस लॉज नहीं है. तो मेक श्योर यू रिमेंबर देम एंड राइट इट इन योर नोट्स. Now we have one very small topic, that is waiving of fundamental rights. Can a person waive his or her fundamental rights? The answer is no. In Basheshwar Nath versus CIT 1959 Supreme Court case, the court held that fundamental rights cannot be waived. In MP Sugar Mills थोड़ा सा different opinion था, but ultimately result वही है. It was held that the fundamental rights guaranteed under Part 3 of the Indian Constitution cannot be waived by any citizen. However, they can be waived in non-fundamental rights case, provided that the person who is waiving his rights has the knowledge of such waiver and has the knowledge of not only such waiver but also the consequence of such waiver. Right? So basically, you cannot waive your fundamental rights. Now, this is also a stark difference from the US fundamental rights. In USA, the fundamental rights can be waived. So this is it for the video today. I hope you like the video. Make sure you like and subscribe to you like this video and subscribe to my channel, and don't forget to put your doubts and feedback in the comment section down below. You can also reach out to me through email nilaykumar.lawonnen@gmail.com, or you can DM me on my Instagram anytime at law by Nilay Kumar. So I'll see you on the next video. Bye bye.